میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت ہی یہ زبردست مومنٹ ہے، ٹائم ہے کہ میں اس وقت ایک ایسے شہر میں موجود ہوں، امریکہ کا وہ سٹی بوسٹن، جہاں پر دنیا بھر کے بہترین تعلیمی ادارے موجود ہیں. ہارورڈ سے شروع ہو جائیے اور پھر MIT اور کون سا تعلیمی ادارہ جہاں سے پورے دنیا سے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور آج میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں پروگرام میں، وہ بھی کچھ ایسی ہی پرسنالٹیز ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں اور جو ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے نہ صرف پڑھ کے نکلے بلکہ یہاں پر لیکچرز بھی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، جو کہ ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں، آتھر ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ. واقعی آج کا دن ایک بہت خاص ہے کہ یہ ہماری گفتگو بوسٹن میں ہو رہی ہے، اور بوسٹن سے ہی امریکہ کی آزادی کا اعلان جو ہے وہ شروع ہوا تھا، بوسٹن ٹی پارٹی. تو جی ڈاکٹر یہ صاحب. بڑا ایک انٹرسٹنگ جی موقع ہے. جی 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 ڈاکٹر اشتیاق احمد کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے گھر میں ہم موجود ہیں، ڈاکٹر چندر پال شرما جی، جو کہ ہارورڈ فیکلٹی ممبر رہے اور سائنٹسٹ ہیں، بایو کیمسٹ، اور بہت ہی کمال کی ان کی سوچ رکھتے ہیں لوگوں کی ترقی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Thank you, Alia ji. Thank you so much for coming to Boston and to be with you, as a matter of fact. Thank you. جی، اور ہمارے ساتھ آج شریک ہو رہے ہیں مظہر ملک صاحب، جو کہ خاص طور پر انٹرٹینمنٹ، انفوٹینمنٹ اور لوگوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے یہ جو بیچ میں ایک تقسیم ہے، تفرقہ ہے، اس کو ختم کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مظہر صاحب فار جوائننگ مائی شو. جی، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. دو ایسی شخصیات جو میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب اور چندر پال شرما جی، میں خوش قسمت ہوں کہ آج ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. آئی ایم ویری لکی. بیٹھا ہوں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ایکچولی ہم 2 دن سے جب ملاقات ہوئی ہے تو اتنی باتیں ہوئیں اور لگا کہ ہماری سوچ، ہماری زندگی کے ایکسپیرینس اتنے قریب ہیں کہ بہت لگتا ہے بہت جنموں سے ہماری دوستی ہے. تو آج اس محفل میں ہم چاروں کا ہونا میں ہمیشہ ایک گریٹ مومنٹ ان مائی لائف میں سمجھوں گا. پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، آج ایک بڑا دن اس لیے بھی کہ آج آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ کا ہارورڈ میں ایک لیکچر ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ اس کو سننے کے لیے آئیں گے. سر، اس پہ بھی بیان کیجیے گا کہ وہاں پر آج آپ کیا کہنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو ایک بہت ہی زبردست پریسٹیجیس ایوارڈ، نالندہ ایوارڈ، آپ کو کینیڈا میں دیا گیا. سر، بہت بہت مبارکباد. اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ وہ ایوارڈ، اس کی کیا ہسٹری ہے اور کیسے آپ اس کے اوپر کیا خیالات کا اظہار کریں گے. دیکھیں، میری زندگی میں ایک بہت بڑا مقام اب آیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مجھے دیا گیا ہے، اور یہ فرسٹ کینیڈین ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول، اور یہ نالندہ یونیورسٹی کے نام پہ یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو مجھے انہوں نے ایک تو کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا، اور پھر وہاں پہ جو سرپرائز ہوئی اپنا پرائز ڈسٹریبیوشن، تو اس کے اندر مجھے بیسٹ نان فکشن آتھر کا ایوارڈ دیا گیا. اور اس کی بنیاد میرے خیال میری جو 3 کتابیں ہیں نا، دا پنجاب بلڈی پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ، اور پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ، اور جو لیٹسٹ ہے جنا ہز سکسیسز فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری. ان 3 کتابوں نے ہندوستان اور پاکستان میں جو ریسرچ ہوتی ہے نا ان فریڈم سٹرگل پہ اور پاکستان کی ہسٹری پہ اور انڈیا کے اندر جو سوشل موومنٹس ہیں، ان سب پہ بہت لوگوں نے اسے پازیٹیولی لیا ہے آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر. تو یہ مجھے ایوارڈ ملا ہے بیسٹ نان فکشن آتھر 2023 ایٹ دا کینیڈین فرسٹ ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول نالندہ ایوارڈس. جی، تو ڈاکٹر صاحب، آج ہارورڈ میں آپ کا لیکچر ایک بہت ہی پریسٹیجیس مومنٹ، یہاں پر بہت سارے لوگ اس کو جو ہے بے تاب ہیں سننے کے لیے. سر، یہ جو ہم جب بات کرتے ہیں
साउथ एशिया की, हम पाकिस्तान, इंडिया और इसी तरीके से हम जब लोगों के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तालीम और जो तालीमी इदारे यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हम आज मौजूद हैं, ये इंसान की तरक्की में कैसे कितना किरदार अदा करते हैं और कितनी ज्यादा जरूरत है हमें तालीम की? देखिए, अपना दुनिया के अंदर जो अमेरिका ने लीडरशिप दुनिया की ली, उसमें उनकी साइंटिफिक और तालीमी इदारों की जो है रेपुटेशन, वो बहुत अपना मजबूत है, ठोस है। हार्वर्ड में आके पढ़ना, MIT में पढ़ना हाईली प्रेस्टिजियस गिना जाता है। और यहाँ पे बेतहाशा और भी यूनिवर्सिटी हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटियों का और हायर एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बॉस्टन इज़ फेमस फॉर दैट। तो आज का मेरा लेक्चर है द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। उसमें कंपैरेटिव स्टडी होगा कि पंजाब के और बंगाल की जब पार्टीशन हुई तो उनमें क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ मुख्तलिफ है, और ये पार्टीशंस हुई क्यों। इस किस्म का आज मेरा टॉक है, और उम्मीद है कि वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी आज। आप लोग भी यकीनन आएंगे तो उससे और ज़्यादा चार चांद लग जाएगी आज की गुफ्तगू को। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो बड़ी एक एजाज की बात है कि आपकी गुफ्तगू हम वैसे भी सुनते हैं और प्रोग्राम्स में भी आप आते हैं, और आज भी हम वहाँ पे एक ऐसी जगह पर सुनेंगे। डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आप एक ऐसा, आपको भी हम कहेंगे कि ब्लेसिंग है कि आप ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी आपके पास कि जो यहाँ पर आते हैं और आप उनको इनवाइट करते हैं, और इस तरीके से हमें मौका मिलता है ऐसी बातचीत करने का। बीइंग अ साइंटिस्ट, आप क्या समझते हैं कि हम जब भी बात करते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि इंडिया में G20 एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मीटिंग हुई है वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो सर, जबकि हम जब दूसरी तरफ देखते हैं पाकिस्तान में, तो वहां पे जाहिर है कि हालात जो है वो बेहतर नहीं है। तो क्या तालीम और साइंस लोगों को आगे बढ़ाने में किस तरीके से किरदार अदा कर सकती है, डॉक्टर साहब? थैंक यू अगेन आलिया जी। देखिए, मेरी तो सारी लाइफ साइंस के ऊपर बेस्ड है, और जो कुछ भी हमने एनालिसिस किए हैं, साइंटिफिक एनालिसिस हैं, आप उनको, जो हम बोलते हैं, आप सभी उनको गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये ठीक बात है कि नहीं। तो बड़ी कॉमन सी सिंपल सी बात हमेशा ही मैं करता हूँ। और पाकिस्तान के बारे में तो अक्सर हम बहुत सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ से थे, तो उस ज़मीन से हमें बहुत प्यार है। तो बड़ी बार तो हम, मेरा भाई, हम दोनों अक्सर इमोशनली हो जाते हैं इस बात के ऊपर। मगर नॉनदलेस जो कुछ रीजनिंग है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया इतना, और उसके पीछे कुछ 4-5 चीजें हैं। तो इट्स ए बैड न्यूज एक्चुअली। मैं एंड की बात पहले कर दी, इट्स ए बैड न्यूज कि पाकिस्तान के लिए बहुत बैड न्यूज है कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता। उसका रीजन, बड़े रीजन है उसमें जो हमने एनालाइज किया है। एक तो आलिया जी मेन रीजन है कि पीपल आर वेरी रिलीजियस। आप देखो दुनिया भर में जहां जहां रिलीजन ज्यादा हुआ है ना, हिस्टोरिकली देख लीजिए आप, तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी भाग गई है। तो यूरोप अंधेरे में था, ये बार बार बात हम करते हैं, इस मुस्लिम या उमैयद या नॉर्थ अफ्रीका में क्या प्रॉस्पेरिटी, दैट द ओनली रीजन वाज द एजुकेशन। रिलीजन चाहे था, मगर फिर भी रिलीजन के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन को प्रेफरेंस दी। जहां जहां रिलीजन, इवन कि आप देखें, मैं कहूंगा जैसे क्रिश्चियनिटी में भी बड़े ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, दे आर वेरी पुअर एक्चुअली। जो दूसरे क्रिश्चियंस हैं जो कि बड़े अपने आप को एथियस्ट भी मानते हैं, दे आर वेरी प्रॉस्परस। तो ले दे के एक तो रोल डेफिनेटली रिलीजन का है ही, हालांकि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है, अब चेंज तो करनी होंगी ना चीजें। और दूसरा जो रूल है, जो रीजन है एजुकेशन का, एजुकेशन का तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ना कोई। जहां रिलीजन ज्यादा होता है वहां एजुकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना या रिसोर्सेज नहीं है, जो भी रीजन रहा वो बात की बातें हैं। जहां रिलीजन बढ़ जाता है ना, एजुकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जहां एजुकेशन कम होती है, आपको मालूम है वहां फिर कुछ हो नहीं सकता और कुछ। और जब एजुकेशन, अगर हम दो इनको कंबाइन करें, तो उसके साथ हमने देखा है कि रिलीजन बढ़ेगा, एजुकेशन कम होगी, तो लोगों में एंगर आता है कि हम प्रॉस्परस क्यों नहीं हुई, दुनिया तो तरक्की कर गई, उसमें फिर एंगर, हेट्रेड आती है।
ये 3-4 चीजें हैं जो पाकिस्तान को इतना पीछे खींच के बैठी हुई हैं, मोर रिलीजन, लेस एजुकेशन, और जो मैं ये कह रहा था कि हेट्रेड बहुत बढ़ चुकी है, ये मेन रीजन है पाकिस्तान के। और फिर मैं आगे जाके इसकी क्या थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद में बात करेंगे हम। अपने पॉइंट है मेरे, ये नहीं कि ये ऐसा ही होता है, मैं तो जो कह रहा हूँ हमने उसी चीज को वैसे अचीव किया है। हमने एजुकेशन ली, हमने हार्ड वर्क किया, हमने वेल्थ जनरेट की, तो अगर ये हम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल और लोग भी कर सकते हैं। बाकी उसकी बाद में बात करेंगे, आप आगे बढ़िए इसकी मजर साहब के साथ। जी 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 बिल्कुल। मज़र साहब से मैं ये बात करना चाहूँगी कि बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन, एंटरटेनमेंट में जो है वो आप उसको देखते हैं, इंफोटेनमेंट, लोगों से बातचीत करते हैं, ये सब। तो क्या आप समझते हैं कि जो आर्ट, फिल्म और म्यूजिक, ये सब जो है ये भी इंसान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है? और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें भी बहुत पीछे हैं, कोई इसमें भी हमने कमाल करके नहीं दिखाया। और अभी जैसे कि डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी ने बात की कि मजहब के हवाले से कि बहुत जुनूनियत जो आ गई है मजहब में, जैसे कि वो हमले वगैरह भी हुए पिछले दिनों चर्चिस पर, इस तरह से ये सब वाकयात भी होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहता था मोहब्बतों को बांटना है, नफरत को खत्म करना है। तो नफरत कैसे खत्म होगी, मोहब्बतें हम कैसे बांट सकेंगे? सबसे पहले तो हमें एजुकेशन देनी होगी। जो बहुत ही मैं दुखी था जो वाकया हुआ, उनके गिरजाघरों को जला दिया गया, उनकी इबादत गाहों को नजर आतिश किया गया। देखें, कल भी हमारी इस टॉपिक पे बात हो रही थी, सब के सब लोग ऐसे नहीं हैं, उनमें चंद शर पसंद अनासिर हैं जो इस तरह का काम डालते हैं जिसमें लोग देखा देखी बाकी लोग भी कहते हैं चलो जी, नहीं सोचते। लेकिन क्या हुआ, हमारी बदकिस्मती के मुल्लाइज्म इतना फैल गया उस मुल्क के अंदर, वो जो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले। मैं आज भी अपने उस बचपन को याद करता हूं जब किसी को मेहमान किसी के घर आना होता था तो लड़ाई होती थी कि मेहमान हमारे घर जब तक नहीं रहेगा हम आपसे नाराज हो जाएंगे। खाना, बिस्तर, रिहाइश सब कुछ दूसरे लेके आते थे। ये तो मोहब्बतें बांटने वाले लोग थे। फिर ऐसा क्या हुआ, हमारी सोच कैसे बदल गई कि आज हम नफरत की बात कर रहे हैं, आर्ट से दूर हो गए, फिल्म से दूर हो गए। हर वक्त सब मंटो की क्या खूबसूरत बात थी, एक ही जगह पे सब बैठे हुए हैं, कौन से धर्म से आपका ताल्लुक है, किस मजहब से आपका ताल्लुक है, नहीं, सब बैठे मूवी देख रहे हैं। सबके चेहरे पे वो मूवी मुस्कुराहट बखेर रही है। जैसे ही बाहर निकले हैं, वहां सिर्फ शिया जाएगा, वहां सिर्फ सुन्नी जाएगा, वहां वहाबी, वहां बरेलवी, फिर हम इसमें बट गए। तो क्या उस मूवी ने हमें इकट्ठा कर दिया? तो क्या मजहब हमें दूर करता है? नहीं, मजहब दूर नहीं करता। एजुकेशन की कमी है। हर बंदे ने अपनी अपनी मस्जिद बना ली है, अपना अपना दर्स शुरू कर दिया है, अपना अपना मजहब बना लिया है। जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जोर जबरदस्ती चल रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, एजुकेशन यही है। लोग जो बैठे देख रहे हैं समझते नहीं हैं, लेकिन ड्रामे का स्क्रिप्ट इस तरह का होगा कि हम उनको समझा सकें जिंदगी की खूबसूरती इसी में है। खुद अगर खुश रहना चाहते हैं तो पहले हमें दूसरों को भी खुश करना होगा। दूसरों की जिंदगी की अजीरन बना के हम कैसे खुश हो सकते हैं? तो हमें अपनी मूवी में, अपने सब्जेक्ट में अपना कंटेंट इस तरह का बनाना होगा कि लोगों को वाकई लगे कि यार हम किस तरफ चल पड़े हैं। और मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहूंगा तमाम देखने वालों से कि आप भी अपना अपना प्लीज किरदार अदा करें। कतरा कतरा मिलके, बारिश का पहला कतरा सोच रहे भी मैं अकेला क्या कर सकता हूं, नहीं, वो भी कर सकता है। इब्तिदा अपने आप से आज करते हैं, मोहब्बतों को बांटते हैं। नफरत कैसे खत्म करनी है? रवैयों को, बिहेव को, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। लेकिन मुल्क की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की, एजुकेशन तो वैसे ही नहीं है, बर्दाश्त भी खत्म हो चुका है, तो मजहब एक खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है। तो भड़ास जो होती है आजकल निकल रही है पाकिस्तान में मजहब की सूरत में, ये बहुत गलत हो रहा है। बड़ी खूबसूरत बातें की इश्तियाक साहब ने और डॉक्टर शर्मा जी ने। वाकई एजुकेशन, तो आज हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ना पहुंचने की रीजन है एजुकेशन। बिल्कुल ठीक। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज एक ऐसा दिन है कि जाहिर है कि हम हार्वर्ड में एक लेक्चर में शामिल होंगे और बहुत बड़ी ऑडियंस वहां पर होगी, और हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को। और दोबारा आपसे मुलाकात होगी इस लेक्चर के बाद, और फिर हम ये बात करेंगे कि वहां पर क्या हुआ। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आलिया जी, चंद्रपाल शर्मा जी,
मजहर मलिक साहब, सर प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।